یہ گھر ہمیشہ سے خاموش تھا، مگر آج اس خاموشی میں بوجھ تھا۔ عالیہ صحن میں بیٹھی چائے کو گھور رہی تھی، جیسے چائے کی سطح پر تیرتی بھاپ میں اپنا مستقبل تلاش کر رہی ہو۔ اندر کمرے سے ابو کی آواز آ رہی تھی، سخت، فیصلہ کن، بے لچک۔ ہم نے سوچ لیا ہے، شفاق اچھا رشتہ ہے، اب قبول ہے۔ ایک لمحے کو وقت رکھ گیا۔ عالیہ نے نظریں اٹھائیں، حمزہ نے آہستہ سر ہلایا، اور وہ لفظ ادا ہو گیا جو اس کی زندگی کی سمت بدل گیا۔ قبول ہے۔ شادی کے بعد کا گھر بڑا تھا، مگر دل تنگ۔ ساس کی محبت میں حکم شامل تھا، اور ہر مسکراہٹ کے پیچھے توقعات۔ عورت کا اصل گھر یہی ہوتا ہے، یہ جملہ روز اسے یاد دلایا جاتا۔ حمزہ اچھا تھا مگر خاموش، اور بعض اوقات خاموشی بے رخی سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ ایک دن معمولی بات پر جھگڑا ہو گیا، پیسے، ذمہ داریاں، خاندان، سب کچھ اکٹھا ہو گیا۔ غصے میں حمزہ کے منہ سے وہ لفظ نکل گیا جس نے عالیہ کے قدموں تلے زمین کھینچ لی، طلاق۔ وہ لفظ دھمکی تھا، مگر اثر حقیقت جیسا۔ عالیہ نے اس دن جان لیا کہ عورت کا اعتماد کتنی آسانی سے توڑا جا سکتا ہے۔ عالیہ چند دن کے لیے ماں کے گھر چلی گئی۔ وہ گھر جہاں وہ کبھی بیٹھی تھی، اب مہمان تھی۔ ماں نے پیار کیا، مگر بے بسی آنکھوں میں تھی۔ بیٹیاں واپس نہیں آتے، نبھانے جاتی ہیں۔ یہ جملہ عالیہ کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ عالیہ نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ وہ لڑکی کہاں گئی جو خواب دیکھتی تھی؟ اس نے فیصلہ کیا، اگر زندگی سمجھوتا ہے تو شرطیں وہ خود طے کرے گی۔ اس نے پڑھائی دوبارہ شروع کی، اپنی خاموشی کو علم میں بدلا، اور کمزوری کو طاقت میں۔ حمزہ نے بدلا ہوا عالیہ دیکھی تو گھبرا گیا۔ یہ خاموش عورت اب سوال کرنے لگی تھی۔ ایک رات عالیہ نے صاف کہا، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں مگر ڈر کے ساتھ نہیں۔ حمزہ پہلی بار شرمندہ ہوا۔ اسے احساس ہوا کہ مرد کی ایک اینا عورت کی پوری زندگی ہلا دیتی ہے۔ یہ فیصلہ طلاق کا نہیں تھا، یہ فیصلہ برابری کا تھا۔ عالیہ اور حمزہ نے گھر الگ کر لیا، مشترکہ خاندان سے علیحدگی، مگر رشتے سے نہیں، زہر سے۔ لوگوں نے باتیں بنائیں، مگر عالیہ نے سکون پایا۔ اختتام۔ خاموشی کی آواز۔ کچھ سال بعد عالیہ ایک اسکول میں پڑھا رہی تھی۔ بچیاں اس کے گرد بیٹھی تھیں۔ وہ مسکرائی اور بولی، خاموش رہنا صبر ہو سکتا ہے، مگر بولنا حق ہے۔ وہ جان گئی تھی، خاموش شہر میں بھی آواز پیدا کی جا سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو حق کے ساتھ جینے اور بولنے کی ہمت دے۔ اللہ حافظ۔ نون۔ یہ گھر ہمیشہ سے خاموش تھا، مگر آج اس خاموشی میں بوجھ تھا۔ عالیہ صحن میں بیٹھی چائے کو گھور رہی تھی، جیسے چائے کی سطح پر تیرتی بھاپ میں اپنا مستقبل تلاش کر رہی ہو۔ اندر کمرے سے ابو کی آواز آ رہی تھی، سخت، فیصلہ کن، بے لچک۔ ہم نے سوچ لیا ہے، شفاق اچھا رشتہ ہے، اب قبول ہے۔ ایک لمحے کو وقت رکھ گیا۔ عالیہ نے نظریں اٹھائیں، حمزہ نے آہستہ سر ہلایا، اور وہ لفظ ادا ہو گیا جو اس کی زندگی کی سمت بدل گیا۔ قبول ہے۔ شادی کے بعد کا گھر بڑا تھا، مگر دل تنگ۔ ساس کی محبت میں حکم شامل تھا، اور ہر مسکراہٹ کے پیچھے توقعات۔ عورت کا اصل گھر یہی ہوتا ہے، یہ جملہ روز اسے یاد دلایا جاتا۔ حمزہ اچھا تھا مگر خاموش، اور بعض اوقات خاموشی بے رخی سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ ایک دن معمولی بات پر جھگڑا ہو گیا، پیسے، ذمہ داریاں، خاندان، سب کچھ اکٹھا ہو گیا۔ غصے میں حمزہ کے منہ سے وہ لفظ نکل گیا جس نے عالیہ کے قدموں تلے زمین کھینچ لی، طلاق۔ وہ لفظ دھمکی تھا، مگر اثر حقیقت جیسا۔ عالیہ نے اس دن جان لیا کہ عورت کا اعتماد کتنی آسانی سے توڑا جا سکتا ہے۔ عالیہ چند دن کے لیے ماں کے گھر چلی گئی۔ وہ گھر جہاں وہ کبھی بیٹھی تھی، اب مہمان تھی۔ ماں نے پیار کیا، مگر بے بسی آنکھوں میں تھی۔ بیٹیاں واپس نہیں آتے، نبھانے جاتی ہیں۔ یہ جملہ عالیہ کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ عالیہ نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ وہ لڑکی کہاں گئی جو خواب دیکھتی تھی؟ اس نے فیصلہ کیا، اگر زندگی سمجھوتا ہے تو شرطیں وہ خود طے کرے گی۔ اس نے پڑھائی دوبارہ شروع کی، اپنی خاموشی کو علم میں بدلا، اور کمزوری کو طاقت میں۔ حمزہ نے بدلا ہوا عالیہ دیکھی تو گھبرا گیا۔ یہ خاموش عورت اب سوال کرنے لگی تھی۔ ایک رات عالیہ نے صاف کہا، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں مگر ڈر کے ساتھ نہیں۔ حمزہ پہلی بار شرمندہ ہوا۔ اسے احساس ہوا کہ مرد کی ایک اینا عورت کی پوری زندگی ہلا دیتی ہے۔ یہ فیصلہ طلاق کا نہیں تھا، یہ
ये फैसला बराबरी का था। आलिया और हमजा ने घर अलग कर लिया। मुश्तरका खानदान से अलीहदगी मगर रिश्ते से नहीं, जहर से। लोगों ने बातें बनाई मगर आलिया ने सुकून पाया। इख्तिताम। खामोशी की आवाज़। कुछ साल बाद आलिया एक स्कूल में पढ़ा रही थी। बच्चियां उसके गर्द बैठी थीं। वो मुस्कुराई और बोली, खामोश रहना सब्र हो सकता है मगर बोलना हक है। वो जान गई थी खामोश शहर में भी आवाज़ पैदा की जा सकती है। अल्लाह हम सबको हक के साथ जीने और बोलने की हिम्मत दे। अल्लाह हाफिज। नून। ये घर हमेशा से खामोश था मगर आज उस खामोशी में बोझ था। आलिया सहन में बैठी चाय को घूर रही थी, जैसे चाय की सतह पर तीरती भाप में अपना मुस्तकबल तलाश कर रही हो। अंदर कमरे से अबू की आवाज आ रही थी, सख्त, फैसला कुन, बेलचक। हमने सोच लिया है, शफाक अच्छा रिश्ता है, अब कबूल है। एक लम्हे को वक्त रख गया। आलिया ने नजरें उठाईं। हमजा ने आहिस्ता सर हिलाया और वो लफ्ज अदा हो गया जो उसकी जिंदगी की समत बदल गया। कबूल है। शादी के बाद का घर बड़ा था मगर दिल तंग। सास की मोहब्बत में हुक्म शामिल था और हर मुस्कुराहट के पीछे तवक्कुआत। औरत का असल घर यही होता है, ये जमला रोज उसे याद दिलाया जाता। हमजा अच्छा था मगर खामोश, और बाज़ औक़ात खामोशी बेरखी से ज्यादा तकलीफ देती है। एक दिन मामूली बात पर झगड़ा हो गया। पैसे, जिम्मेदारियां, खानदान, सब कुछ उठा हो गया। गुस्से में हमजा के मुंह से वो लफ्ज निकल गया जिसने आलिया के कदमों तले जमीन खींच ली। तलाक। वो लफ्ज धमकी था मगर असर हकीकत जैसा। आलिया ने इस दिन जान लिया कि औरत का आतिमाद कितनी आसानी से तोड़ा जा सकता है। आलिया चंद दिन के लिए माँ के घर चली गई। वो घर जहां वो कभी बैठी थी अब मेहमान थी। माँ ने प्यार किया मगर बेबसी आंखों में थी। बेटियां वापस नहीं आते, नभाने जाती हैं। ये जमला आलिया के दिल में तीर की तरह लगा। आलिया ने खुद को आईने में देखा। वो लड़की कहाँ गई जो ख्वाब देखती थी। उसने फैसला किया, अगर जिंदगी समझौता है तो शर्तें वो खुद तय करेगी। उसने पढ़ाई दोबारा शुरू की, अपनी खामोशी को इल्म में बदला और कमजोरी को ताकत में। हमजा ने बदला हुआ आलिया देखी तो घबरा गया। ये खामोश औरत अब सवाल करने लगी थी। एक रात आलिया ने साफ कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ मगर डर के साथ नहीं। हमजा पहली बार शर्मिंदा हुआ। उसे एहसास हुआ कि मर्द की एक इना औरत की पूरी जिंदगी हिला देती है। ये फैसला तलाक का नहीं था, ये फैसला बराबरी का था। आलिया और हमजा ने घर अलग कर लिया। मुश्तरका खानदान से अलीहदगी मगर रिश्ते से नहीं, जहर से। लोगों ने बातें बनाई मगर आलिया ने सुकून पाया। इख्तिताम। खामोशी की आवाज़। कुछ साल बाद आलिया एक स्कूल में पढ़ा रही थी। बच्चियां उसके गर्द बैठी थीं। वो मुस्कुराई और बोली, खामोश रहना सब्र हो सकता है मगर बोलना हक है। वो जान गई थी खामोश शहर में भी आवाज़ पैदा की जा सकती है। अल्लाह हम सबको हक के साथ जीने और बोलने की हिम्मत दे। अल्लाह हाफिज। नून। ये घर हमेशा से खामोश था मगर आज उस खामोशी में बोझ था। आलिया सहन में बैठी चाय को घूर रही थी, जैसे चाय की सतह पर तीरती भाप में अपना मुस्तकबल तलाश कर रही हो। अंदर कमरे से अबू की आवाज आ रही थी, सख्त, फैसला कुन, बेलचक। हमने सोच लिया है, शफाक अच्छा रिश्ता है, अब कबूल है। एक लम्हे को वक्त रख गया। आलिया ने नजरें उठाईं। हमजा ने आहिस्ता सर हिलाया और वो लफ्ज अदा हो गया जो उसकी जिंदगी की समत बदल गया। कबूल है। शादी के बाद का घर बड़ा था मगर दिल तंग। सास की मोहब्बत में हुक्म शामिल था और हर मुस्कुराहट के पीछे तवक्कुआत। औरत का असल घर यही होता है, ये जमला रोज उसे याद दिलाया जाता। हमजा अच्छा था मगर खामोश, और बाज़ औक़ात खामोशी बेरखी से ज्यादा तकलीफ देती है। एक दिन मामूली बात पर झगड़ा हो गया। पैसे, जिम्मेदारियां, खानदान, सब कुछ उठा हो गया। गुस्से में हमजा के मुंह से वो लफ्ज निकल गया जिसने आलिया के कदमों तले जमीन खींच ली। तलाक। वो लफ्ज धमकी था मगर असर हकीकत जैसा। आलिया ने इस दिन जान लिया कि औरत का आतिमाद कितनी आसानी से तोड़ा जा सकता है। आलिया चंद दिन के लिए माँ के घर चली गई। वो घर जहां वो कभी बैठी थी अब मेहमान थी। माँ ने प्यार किया मगर बेबसी आंखों में थी। बेटियां वापस नहीं आते, नभाने जाती हैं। ये जमला आलिया के दिल में तीर की तरह लगा। आलिया ने खुद को आईने में देखा।
वो लड़की कहाँ गई जो ख्वाब देखती थी। उसने फैसला किया, अगर जिंदगी समझौता है तो शर्तें वो खुद तय करेगी। उसने पढ़ाई दोबारा शुरू की, अपनी खामोशी को इल्म में बदला और कमज़ोरी को ताकत में। हमजा ने बदला हुआ आलिया देखी तो घबरा गया। ये खामोश औरत अब सवाल करने लगी थी। एक रात आलिया ने साफ कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ मगर डर के साथ नहीं। हमजा पहली बार शर्मिंदा हुआ। उसे एहसास हुआ कि मर्द की एक इना औरत की पूरी ज़िंदगी हिला देती है। ये फैसला तलाक का नहीं था, ये फैसला बराबरी का था। आलिया और हमजा ने घर अलग कर लिया, मुश्तरका ख़ानदान से अलीहदगी मगर रिश्ते से नहीं, जहर से। लोगों ने बातें बनाई मगर आलिया ने सुकून पाया। इख्तिताम। खामोशी की आवाज़। कुछ साल बाद आलिया एक स्कूल में पढ़ा रही थी। बच्चियां उसके गर्द बैठी थीं। वो मुस्कुराई और बोली, खामोश रहना सब्र हो सकता है मगर बोलना हक है। वो जान गई थी, खामोश शहर में भी आवाज़ पैदा की जा सकती है। अल्लाह हम सबको हक के साथ जीने और बोलने की हिम्मत दे। अल्लाह हाफिज़। नून। ये घर हमेशा से खामोश था मगर आज उस खामोशी में बोझ था। आलिया सहन में बैठी चाय को घूर रही थी, जैसे चाय की सतह पर तैरती भाप में अपना मुस्तकबल तलाश कर रही हो। अंदर कमरे से अबू की आवाज आ रही थी, सख्त, फैसला कुन, बेलचक। हमने सोच लिया है, शफाक अच्छा रिश्ता है, अब कबूल है। एक लम्हे को वक्त रख गया। आलिया ने नजरें उठाईं। हमजा ने आहिस्ता सर हिलाया और वो लफ्ज अदा हो गया जो उसकी जिंदगी की समत बदल गया। कबूल है। शादी के बाद का घर बड़ा था मगर दिल तंग। सास की मोहब्बत में हुक्म शामिल था और हर मुस्कुराहट के पीछे तवक्कुआत। औरत का असल घर यही होता है, ये जमला रोज उसे याद दिलाया जाता। हमजा अच्छा था मगर खामोश, और बाज़ औक़ात खामोशी बेरखी से ज्यादा तकलीफ देती है। एक दिन मामूली बात पर झगड़ा हो गया। पैसे, जिम्मेदारियां, खानदान, सब कुछ उकठा हो गया। गुस्से में हमजा के मुंह से वो लफ्ज निकल गया जिसने आलिया के कदमों तले जमीन खींच ली। तलाक। वो लफ्ज धमकी था मगर असर हकीकत जैसा। आलिया ने इस दिन जान लिया कि औरत का आतिमाद कितनी आसानी से तोड़ा जा सकता है। आलिया चंद दिन के लिए माँ के घर चली गई। वो घर जहां वो कभी बैठी थी अब मेहमान थी। माँ ने प्यार किया मगर बेबसी आंखों में थी। बेटियां वापस नहीं आते, निभाने जाती हैं। ये जमला आलिया के दिल में तीर की तरह लगा। आलिया ने खुद को आईने में देखा। वो लड़की कहाँ गई जो ख्वाब देखती थी। उसने फैसला किया, अगर जिंदगी समझौता है तो शर्तें वो खुद तय करेगी। उसने पढ़ाई दोबारा शुरू की, अपनी खामोशी को इल्म में बदला और कमज़ोरी को ताकत में। हमजा ने बदला हुआ आलिया देखी तो घबरा गया। ये खामोश औरत अब सवाल करने लगी थी। एक रात आलिया ने साफ कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ मगर डर के साथ नहीं। हमजा पहली बार शर्मिंदा हुआ। उसे एहसास हुआ कि मर्द की एक इना औरत की पूरी ज़िंदगी हिला देती है। ये फैसला तलाक का नहीं था, ये फैसला बराबरी का था। आलिया और हमजा ने घर अलग कर लिया, मुश्तरका ख़ानदान से अलीहदगी मगर रिश्ते से नहीं, जहर से। लोगों ने बातें बनाई मगर आलिया ने सुकून पाया। इख्तिताम। खामोशी की आवाज़। कुछ साल बाद आलिया एक स्कूल में पढ़ा रही थी। बच्चियां उसके गर्द बैठी थीं। वो मुस्कुराई और बोली, खामोश रहना सब्र हो सकता है मगर बोलना हक है। वो जान गई थी, खामोश शहर में भी आवाज़ पैदा की जा सकती है। अल्लाह हम सबको हक के साथ जीने और बोलने की हिम्मत दे। अल्लाह हाफिज़। नून। ये घर हमेशा से खामोश था मगर आज उस खामोशी में बोझ था। आलिया सहन में बैठी चाय को घूर रही थी, जैसे चाय की सतह पर तैरती भाप में अपना मुस्तकबल तलाश कर रही हो। अंदर कमरे से अबू की आवाज आ रही थी, सख्त, फैसला कुन, बेलचक। हमने सोच लिया है, शफाक अच्छा रिश्ता है, अब कबूल है। एक लम्हे को वक्त रख गया। आलिया ने नजरें उठाईं। हमजा ने आहिस्ता सर हिलाया और वो लफ्ज अदा हो गया जो उसकी जिंदगी की समत बदल गया। कबूल है। शादी के बाद का घर बड़ा था मगर दिल तंग। सास की मोहब्बत में हुक्म शामिल था और हर मुस्कुराहट के पीछे तवक्कुआत। औरत का असल घर यही होता है, ये जमला रोज उसे याद दिलाया जाता। हमजा अच्छा था मगर खामोश, और बाज़ औक़ात खामोशी बेरखी से ज्यादा तकलीफ देती है। एक दिन मामूली बात पर झगड़ा हो गया। पैसे, जिम्मेदारियां, खानदान, सब कुछ उकठा हो गया।
गुस्से में हमजा के मुंह से वो लफ्ज निकल गया जिसने आलिया के कदमों तले जमीन खींच ली। तलाक। वो लफ्ज धमकी था मगर असर हकीकत जैसा। आलिया ने इस दिन जान लिया कि औरत का आतिमाद कितनी आसानी से तोड़ा जा सकता है। आलिया चंद दिन के लिए माँ के घर चली गई। वो घर जहाँ वो कभी बैठी थी अब मेहमान थी। माँ ने प्यार किया मगर बेबसी आंखों में थी। बेटियां वापस नहीं आते, निभाने जाती हैं। ये जमला आलिया के दिल में तीर की तरह लगा। आलिया ने खुद को आईने में देखा। वो लड़की कहाँ गई जो ख्वाब देखती थी। उसने फैसला किया अगर जिंदगी समझौता है तो शर्तें वो खुद तय करेगी। उसने पढ़ाई दोबारा शुरू की, अपनी खामोशी को इल्म में बदला और कमजोरी को ताकत में। हमजा ने बदला हुआ आलिया देखी तो घबरा गया। ये खामोश औरत अब सवाल करने लगी थी। एक रात आलिया ने साफ कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ मगर डर के साथ नहीं। हमजा पहली बार शर्मिंदा हुआ। उसे एहसास हुआ कि मर्द की एक इना औरत की पूरी जिंदगी हिला देती है। ये फैसला तलाक का नहीं था, ये फैसला बराबरी का था। आलिया और हमजा ने घर अलग कर लिया। मुश्तरका खानदान से अलीहदगी मगर रिश्ते से नहीं, जहर से। लोगों ने बातें बनाई मगर आलिया ने सुकून पाया। इख्तिताम। खामोशी की आवाज़। कुछ साल बाद आलिया एक स्कूल में पढ़ा रही थी। बच्चियां उसके गर्द बैठी थीं। वो मुस्कुराई और बोली, खामोश रहना सब्र हो सकता है मगर बोलना हक है। वो जान गई थी खामोश शहर में भी आवाज़ पैदा की जा सकती है। अल्लाह हम सबको हक के साथ जीने और बोलने की हिम्मत दे। अल्लाह हाफिज। नून। ये घर हमेशा से खामोश था मगर आज उस खामोशी में बोझ था। आलिया सहन में बैठी चाय को घूर रही थी, जैसे चाय की सतह पर तीरती भाप में अपना मुस्तकबल तलाश कर रही हो। अंदर कमरे से अबू की आवाज आ रही थी, सख्त, फैसला कुन, बेलचक। हमने सोच लिया है, शफाक अच्छा रिश्ता है, अब कबूल है। एक लम्हे को वक्त रख गया। आलिया ने नजरें उठाईं। हमजा ने आहिस्ता सर हिलाया और वो लफ्ज अदा हो गया जो उसकी जिंदगी की समत बदल गया। कबूल है। शादी के बाद का घर बड़ा था मगर दिल तंग। सास की मोहब्बत में हुक्म शामिल था और हर मुस्कुराहट के पीछे तवक्कुआत। औरत का असल घर यही होता है, ये जमला रोज उसे याद दिलाया जाता। हमजा अच्छा था मगर खामोश, और बाज़ औक़ात खामोशी बेरखी से ज्यादा तकलीफ देती है। एक दिन मामूली बात पर झगड़ा हो गया। पैसे, जिम्मेदारियां, खानदान, सब कुछ उकठा हो गया। गुस्से में हमजा के मुंह से वो लफ्ज निकल गया जिसने आलिया के कदमों तले जमीन खींच ली। तलाक। वो लफ्ज धमकी था मगर असर हकीकत जैसा। आलिया ने इस दिन जान लिया कि औरत का आतिमाद कितनी आसानी से तोड़ा जा सकता है। आलिया चंद दिन के लिए माँ के घर चली गई। वो घर जहाँ वो कभी बैठी थी अब मेहमान थी। माँ ने प्यार किया मगर बेबसी आंखों में थी। बेटियां वापस नहीं आते, निभाने जाती हैं। ये जमला आलिया के दिल में तीर की तरह लगा। आलिया ने खुद को आईने में देखा। वो लड़की कहाँ गई जो ख्वाब देखती थी। उसने फैसला किया अगर जिंदगी समझौता है तो शर्तें वो खुद तय करेगी। उसने पढ़ाई दोबारा शुरू की, अपनी खामोशी को इल्म में बदला और कमजोरी को ताकत में। हमजा ने बदला हुआ आलिया देखी तो घबरा गया। ये खामोश औरत अब सवाल करने लगी थी। एक रात आलिया ने साफ कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ मगर डर के साथ नहीं। हमजा पहली बार शर्मिंदा हुआ। उसे एहसास हुआ कि मर्द की एक इना औरत की पूरी जिंदगी हिला देती है। ये फैसला तलाक का नहीं था, ये फैसला बराबरी का था। आलिया और हमजा ने घर अलग कर लिया। मुश्तरका खानदान से अलीहदगी मगर रिश्ते से नहीं, जहर से। लोगों ने बातें बनाई मगर आलिया ने सुकून पाया। इख्तिताम। खामोशी की आवाज़। कुछ साल बाद आलिया एक स्कूल में पढ़ा रही थी। बच्चियां उसके गर्द बैठी थीं। वो मुस्कुराई और बोली, खामोश रहना सब्र हो सकता है मगर बोलना हक है। वो जान गई थी खामोश शहर में भी आवाज़ पैदा की जा सकती है। अल्लाह हम सबको हक के साथ जीने और बोलने की हिम्मत दे। अल्लाह हाफिज। नून। ये घर हमेशा से खामोश था मगर आज उस खामोशी में बोझ था। आलिया सहन में बैठी चाय को घूर रही थी, जैसे चाय की सतह पर तीरती भाप में अपना मुस्तकबल तलाश कर रही हो। अंदर कमरे से अबू की आवाज आ रही थी, सख्त, फैसला कुन, बेलचक। हमने सोच लिया है, शफाक अच्छा रिश्ता है, अब कबूल है। एक लम्हे को वक्त रख गया।
आलिया ने नजरें उठाईं। हमजा ने आहिस्ता सर हिलाया और वो लफ्ज अदा हो गया जो उसकी जिंदगी की समत बदल गया। कबूल है। शादी के बाद का घर बड़ा था मगर दिल तंग। सास की मोहब्बत में हुक्म शामिल था और हर मुस्कुराहट के पीछे तवक्कुआत। औरत का असल घर यही होता है, ये जुमला रोज उसे याद दिलाया जाता। हमजा अच्छा था मगर खामोश, और बाज़ औक़ात खामोशी बेरखी से ज्यादा तकलीफ देती है। एक दिन मामूली बात पर झगड़ा हो गया। पैसे, जिम्मेदारियां, खानदान, सब कुछ इकट्ठा हो गया। गुस्से में हमजा के मुंह से वो लफ्ज निकल गया जिसने आलिया के कदमों तले जमीन खींच ली। तलाक। वो लफ्ज धमकी था मगर असर हकीकत जैसा। आलिया ने इस दिन जान लिया कि औरत का आतिमाद कितनी आसानी से तोड़ा जा सकता है। आलिया चंद दिन के लिए माँ के घर चली गई। वो घर जहां वो कभी बैठी थी अब मेहमान थी। माँ ने प्यार किया मगर बेबसी आंखों में थी। बेटियां वापस नहीं आते, निभाने जाती हैं। ये जुमला आलिया के दिल में तीर की तरह लगा। आलिया ने खुद को आईने में देखा। वो लड़की कहाँ गई जो ख्वाब देखती थी। उसने फैसला किया, अगर जिंदगी समझौता है तो शर्तें वो खुद तय करेगी। उसने पढ़ाई दोबारा शुरू की, अपनी खामोशी को इल्म में बदला और कमजोरी को ताकत में। हमजा ने बदला हुआ आलिया देखी तो घबरा गया। ये खामोश औरत अब सवाल करने लगी थी। एक रात आलिया ने साफ कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ मगर डर के साथ नहीं। हमजा पहली बार शर्मिंदा हुआ। उसे एहसास हुआ कि मर्द की एक इना औरत की पूरी जिंदगी हिला देती है। ये फैसला तलाक का नहीं था, ये फैसला बराबरी का था। आलिया और हमजा ने घर अलग कर लिया। मुश्तरका खानदान से अलहदगी मगर रिश्ते से नहीं, जहर से। लोगों ने बातें बनाई मगर आलिया ने सुकून पाया। इख्तिताम। खामोशी की आवाज़। कुछ साल बाद आलिया एक स्कूल में पढ़ा रही थी। बच्चियां उसके गर्द बैठी थीं। वो मुस्कुराई और बोली, खामोश रहना सब्र हो सकता है मगर बोलना हक है। वो जान गई थी खामोश शहर में भी आवाज़ पैदा की जा सकती है। अल्लाह हम सबको हक के साथ जीने और बोलने की हिम्मत दे। अल्लाह हाफिज। नून। ये घर हमेशा से खामोश था मगर आज उस खामोशी में बोझ था। आलिया सहन में बैठी चाय को घूर रही थी, जैसे चाय की सतह पर तीरती भाप में अपना मुस्तकबल तलाश कर रही हो। अंदर कमरे से अबू की आवाज आ रही थी, सख्त, फैसला कुन, बेलचक। हमने सोच लिया है, शफाक अच्छा रिश्ता है, अब कबूल है। एक लम्हे को वक्त रख गया। आलिया ने नजरें उठाईं। हमजा ने आहिस्ता सर हिलाया और वो लफ्ज अदा हो गया जो उसकी जिंदगी की समत बदल गया। कबूल है। शादी के बाद का घर बड़ा था मगर दिल तंग। सास की मोहब्बत में हुक्म शामिल था और हर मुस्कुराहट के पीछे तवक्कुआत। औरत का असल घर यही होता है, ये जुमला रोज उसे याद दिलाया जाता। हमजा अच्छा था मगर खामोश, और बाज़ औक़ात खामोशी बेरखी से ज्यादा तकलीफ देती है। एक दिन मामूली बात पर झगड़ा हो गया। पैसे, जिम्मेदारियां, खानदान, सब कुछ इकट्ठा हो गया। गुस्से में हमजा के मुंह से वो लफ्ज निकल गया जिसने आलिया के कदमों तले जमीन खींच ली। तलाक। वो लफ्ज धमकी था मगर असर हकीकत जैसा। आलिया ने इस दिन जान लिया कि औरत का आतिमाद कितनी आसानी से तोड़ा जा सकता है। आलिया चंद दिन के लिए माँ के घर चली गई। वो घर जहां वो कभी बैठी थी अब मेहमान थी। माँ ने प्यार किया मगर बेबसी आंखों में थी। बेटियां वापस नहीं आते, निभाने जाती हैं। ये जुमला आलिया के दिल में तीर की तरह लगा। आलिया ने खुद को आईने में देखा। वो लड़की कहाँ गई जो ख्वाब देखती थी। उसने फैसला किया, अगर जिंदगी समझौता है तो शर्तें वो खुद तय करेगी। उसने पढ़ाई दोबारा शुरू की, अपनी खामोशी को इल्म में बदला और कमजोरी को ताकत में। हमजा ने बदला हुआ आलिया देखी तो घबरा गया। ये खामोश औरत अब सवाल करने लगी थी। एक रात आलिया ने साफ कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ मगर डर के साथ नहीं। हमजा पहली बार शर्मिंदा हुआ। उसे एहसास हुआ कि मर्द की एक इना औरत की पूरी जिंदगी हिला देती है। ये फैसला तलाक का नहीं था, ये फैसला बराबरी का था। आलिया और हमजा ने घर अलग कर लिया। मुश्तरका खानदान से अलहदगी मगर रिश्ते से नहीं, जहर से। लोगों ने बातें बनाई मगर आलिया ने सुकून पाया। इख्तिताम। खामोशी की आवाज़। कुछ साल बाद आलिया एक स्कूल में पढ़ा रही थी। बच्चियां उसके गर्द बैठी थीं। वो मुस्कुराई और बोली, खामोश रहना सब्र हो सकता है मगर बोलना हक है। वो जान गई थी
खामोश शहर में भी आवाज़ पैदा की जा सकती है। अल्लाह हम सबको हक के साथ जीने और बोलने की हिम्मत दे। अल्लाह हाफिज। नून। ये घर हमेशा से खामोश था, मगर आज उस खामोशी में बोझ था। आलिया सहन में बैठी चाय को घूर रही थी, जैसे चाय की सतह पर तीरती भाप में अपना मुस्तकबल तलाश कर रही हो। अंदर कमरे से अबू की आवाज आ रही थी, सख्त, फैसला कुन, बेलचक। हमने सोच लिया है, शफाक अच्छा रिश्ता है, अब कबूल है। एक लम्हे को वक्त रख गया। आलिया ने नजरें उठाईं। हमजा ने आहिस्ता सर हिलाया और वो लफ्ज अदा हो गया जो उसकी जिंदगी की समत बदल गया। कबूल है। शादी के बाद का घर बड़ा था, मगर दिल तंग। सास की मोहब्बत में हुक्म शामिल था और हर मुस्कुराहट के पीछे तवक्कुआत। औरत का असल घर यही होता है, ये जमला रोज उसे याद दिलाया जाता। हमजा अच्छा था मगर खामोश, और बाज़ औक़ात खामोशी बेरखी से ज्यादा तकलीफ देती है। एक दिन मामूली बात पर झगड़ा हो गया। पैसे, जिम्मेदारियां, खानदान, सब कुछ उकठा हो गया। गुस्से में हमजा के मुंह से वो लफ्ज निकल गया जिसने आलिया के कदमों तले जमीन खींच ली, तलाक। वो लफ्ज धमकी था, मगर असर हकीकत जैसा। आलिया ने इस दिन जान लिया कि औरत का आतिमाद कितनी आसानी से तोड़ा जा सकता है। आलिया चंद दिन के लिए माँ के घर चली गई। वो घर जहां वो कभी बैठी थी, अब मेहमान थी। माँ ने प्यार किया, मगर बेबसी आंखों में थी। बेटियां वापस नहीं आते, निभाने जाती हैं। ये जमला आलिया के दिल में तीर की तरह लगा। आलिया ने खुद को आईने में देखा। वो लड़की कहाँ गई जो ख्वाब देखती थी। उसने फैसला किया, अगर जिंदगी समझौता है तो शर्तें वो खुद तय करेगी। उसने पढ़ाई दोबारा शुरू की, अपनी खामोशी को इल्म में बदला और कमजोरी को ताकत में। हमजा ने बदला हुआ आलिया देखी तो घबरा गया। ये खामोश औरत अब सवाल करने लगी थी। एक रात आलिया ने साफ कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मगर डर के साथ नहीं। हमजा पहली बार शर्मिंदा हुआ। उसे एहसास हुआ कि मर्द की एक इना औरत की पूरी जिंदगी हिला देती है। ये फैसला तलाक का नहीं था, ये फैसला बराबरी का था। आलिया और हमजा ने घर अलग कर लिया। मुश्तरका खानदान से अलीहदगी, मगर रिश्ते से नहीं, जहर से। लोगों ने बातें बनाई, मगर आलिया ने सुकून पाया। इख्तिताम। खामोशी की आवाज़। कुछ साल बाद आलिया एक स्कूल में पढ़ा रही थी। बच्चियां उसके गर्द बैठी थीं। वो मुस्कुराई और बोली, खामोश रहना सब्र हो सकता है, मगर बोलना हक है। वो जान गई थी, खामोश शहर में भी आवाज़ पैदा की जा सकती है। अल्लाह हम सबको हक के साथ जीने और बोलने की हिम्मत दे। अल्लाह हाफिज। नून। ये घर हमेशा से खामोश था, मगर आज उस खामोशी में बोझ था। आलिया सहन में बैठी चाय को घूर रही थी, जैसे चाय की सतह पर तीरती भाप में अपना मुस्तकबल तलाश कर रही हो। अंदर कमरे से अबू की आवाज आ रही थी, सख्त, फैसला कुन, बेलचक। हमने सोच लिया है, शफाक अच्छा रिश्ता है, अब कबूल है। एक लम्हे को वक्त रख गया। आलिया ने नजरें उठाईं। हमजा ने आहिस्ता सर हिलाया और वो लफ्ज अदा हो गया जो उसकी जिंदगी की समत बदल गया। कबूल है। शादी के बाद का घर बड़ा था, मगर दिल तंग। सास की मोहब्बत में हुक्म शामिल था और हर मुस्कुराहट के पीछे तवक्कुआत। औरत का असल घर यही होता है, ये जमला रोज उसे याद दिलाया जाता। हमजा अच्छा था मगर खामोश, और बाज़ औक़ात खामोशी बेरखी से ज्यादा तकलीफ देती है। एक दिन मामूली बात पर झगड़ा हो गया। पैसे, जिम्मेदारियां, खानदान, सब कुछ उकठा हो गया। गुस्से में हमजा के मुंह से वो लफ्ज निकल गया जिसने आलिया के कदमों तले जमीन खींच ली, तलाक। वो लफ्ज धमकी था, मगर असर हकीकत जैसा। आलिया ने इस दिन जान लिया कि औरत का आतिमाद कितनी आसानी से तोड़ा जा सकता है। आलिया चंद दिन के लिए माँ के घर चली गई। वो घर जहां वो कभी बैठी थी, अब मेहमान थी। माँ ने प्यार किया, मगर बेबसी आंखों में थी। बेटियां वापस नहीं आते, निभाने जाती हैं। ये जमला आलिया के दिल में तीर की तरह लगा। आलिया ने खुद को आईने में देखा। वो लड़की कहाँ गई जो ख्वाब देखती थी। उसने फैसला किया, अगर जिंदगी समझौता है तो शर्तें वो खुद तय करेगी। उसने पढ़ाई दोबारा शुरू की, अपनी खामोशी को इल्म में बदला और कमजोरी को ताकत में। हमजा ने बदला हुआ आलिया देखी तो घबरा गया। ये खामोश औरत अब सवाल करने लगी थी। एक रात आलिया ने साफ कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मगर डर के साथ नहीं।
حمزہ پہلی بار شرمندہ ہوا. اسے احساس ہوا کہ مرد کی ایک اینا عورت کی پوری زندگی ہلا دیتی ہے. یہ فیصلہ طلاق کا نہیں تھا, یہ فیصلہ برابری کا تھا. عالیہ اور حمزہ نے گھر الگ کر لیا. مشترکہ خاندان سے علیحدگی, مگر رشتے سے نہیں, زہر سے. لوگوں نے باتیں بنائیں مگر عالیہ نے سکون پایا. اختتام. خاموشی کی آواز. کچھ سال بعد عالیہ ایک اسکول میں پڑھا رہی تھی. بچیاں اس کے گرد بیٹھی تھیں. وہ مسکرائی اور بولی, خاموش رہنا صبر ہو سکتا ہے مگر بولنا حق ہے. وہ جان گئی تھی خاموش شہر میں بھی آواز پیدا کی جا سکتی ہے. اللہ ہم سب کو حق کے ساتھ جینے اور بولنے کی ہمت دے. اللہ حافظ. نون. یہ گھر ہمیشہ سے خاموش تھا مگر آج اس خاموشی میں بوجھ تھا. عالیہ صحن میں بیٹھی چائے کو گھور رہی تھی جیسے چائے کی سطح پر تیرتی بھاپ میں اپنا مستقبل تلاش کر رہی ہو. اندر کمرے سے ابو کی آواز آ رہی تھی, سخت, فیصلہ کن, بے لچک. ہم نے سوچ لیا ہے, شفاق اچھا رشتہ ہے, اب قبول ہے. ایک لمحے کو وقت رکھ گیا. عالیہ نے نظریں اٹھائیں. حمزہ نے آہستہ سر ہلایا اور وہ لفظ ادا ہو گیا جو اس کی زندگی کی سمت بدل گیا. قبول ہے. شادی کے بعد کا گھر بڑا تھا مگر دل تنگ. ساس کی محبت میں حکم شامل تھا اور ہر مسکراہٹ کے پیچھے توقعات. عورت کا اصل گھر یہی ہوتا ہے, یہ جملہ روز اسے یاد دلایا جاتا. حمزہ اچھا تھا مگر خاموش, اور بعض اوقات خاموشی بے رخی سے زیادہ تکلیف دیتی ہے. ایک دن معمولی بات پر جھگڑا ہو گیا. پیسے, ذمہ داریاں, خاندان, سب کچھ اکٹھا ہو گیا. غصے میں حمزہ کے منہ سے وہ لفظ نکل گیا جس نے عالیہ کے قدموں تلے زمین کھینچ لی. طلاق. وہ لفظ دھمکی تھا مگر اثر حقیقت جیسا. عالیہ نے اس دن جان لیا کہ عورت کا اعتماد کتنی آسانی سے توڑا جا سکتا ہے. عالیہ چند دن کے لیے ماں کے گھر چلی گئی. وہ گھر جہاں وہ کبھی بیٹھی تھی اب مہمان تھی. ماں نے پیار کیا مگر بے بسی آنکھوں میں تھی. بیٹیاں واپس نہیں آتے, نبھانے جاتی ہیں. یہ جملہ عالیہ کے دل میں تیر کی طرح لگا. عالیہ نے خود کو آئینے میں دیکھا. وہ لڑکی کہاں گئی جو خواب دیکھتی تھی. اس نے فیصلہ کیا, اگر زندگی سمجھوتا ہے تو شرطیں وہ خود طے کرے گی. اس نے پڑھائی دوبارہ شروع کی, اپنی خاموشی کو علم میں بدلا اور کمزوری کو طاقت میں. حمزہ نے بدلا ہوا عالیہ دیکھی تو گھبرا گیا. یہ خاموش عورت اب سوال کرنے لگی تھی. ایک رات عالیہ نے صاف کہا, میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں مگر ڈر کے ساتھ نہیں. حمزہ پہلی بار شرمندہ ہوا. اسے احساس ہوا کہ مرد کی ایک اینا عورت کی پوری زندگی ہلا دیتی ہے. یہ فیصلہ طلاق کا نہیں تھا, یہ فیصلہ برابری کا تھا. عالیہ اور حمزہ نے گھر الگ کر لیا. مشترکہ خاندان سے علیحدگی, مگر رشتے سے نہیں, زہر سے. لوگوں نے باتیں بنائیں مگر عالیہ نے سکون پایا. اختتام. خاموشی کی آواز. کچھ سال بعد عالیہ ایک اسکول میں پڑھا رہی تھی. بچیاں اس کے گرد بیٹھی تھیں. وہ مسکرائی اور بولی, خاموش رہنا صبر ہو سکتا ہے مگر بولنا حق ہے. وہ جان گئی تھی خاموش شہر میں بھی آواز پیدا کی جا سکتی ہے. اللہ ہم سب کو حق کے ساتھ جینے اور بولنے کی ہمت دے. اللہ حافظ. نون. یہ گھر ہمیشہ سے خاموش تھا مگر آج اس خاموشی میں بوجھ تھا. عالیہ صحن میں بیٹھی چائے کو گھور رہی تھی جیسے چائے کی سطح پر تیرتی بھاپ میں اپنا مستقبل تلاش کر رہی ہو. اندر کمرے سے ابو کی آواز آ رہی تھی, سخت, فیصلہ کن, بے لچک. ہم نے سوچ لیا ہے, شفاق اچھا رشتہ ہے, اب قبول ہے. ایک لمحے کو وقت رکھ گیا. عالیہ نے نظریں اٹھائیں. حمزہ نے آہستہ سر ہلایا اور وہ لفظ ادا ہو گیا جو اس کی زندگی کی سمت بدل گیا. قبول ہے. شادی کے بعد کا گھر بڑا تھا مگر دل تنگ. ساس کی محبت میں حکم شامل تھا اور ہر مسکراہٹ کے پیچھے توقعات. عورت کا اصل گھر یہی ہوتا ہے, یہ جملہ روز اسے یاد دلایا جاتا. حمزہ اچھا تھا مگر خاموش, اور بعض اوقات خاموشی بے رخی سے زیادہ تکلیف دیتی ہے. ایک دن معمولی بات پر جھگڑا ہو گیا. پیسے, ذمہ داریاں, خاندان, سب کچھ اکٹھا ہو گیا. غصے میں حمزہ کے منہ سے وہ لفظ نکل گیا جس نے عالیہ کے قدموں تلے زمین کھینچ لی. طلاق. وہ لفظ دھمکی تھا مگر اثر حقیقت جیسا. عالیہ نے اس دن جان لیا کہ عورت کا اعتماد کتنی آسانی سے توڑا جا سکتا ہے. عالیہ چند دن کے لیے ماں کے گھر چلی گئی. وہ گھر جہاں وہ کبھی بیٹھی تھی اب مہمان تھی. ماں نے پیار کیا مگر بے بسی آنکھوں میں تھی. بیٹیاں واپس نہیں آتے,
नभाने जाती हैं। ये जमला आलिया के दिल में तीर की तरह लगा। आलिया ने खुद को आईने में देखा। वो लड़की कहाँ गई जो ख्वाब देखती थी। उसने फैसला किया, अगर जिंदगी समझौता है तो शर्तें वो खुद तय करेगी। उसने पढ़ाई दोबारा शुरू की, अपनी खामोशी को इल्म में बदला और कमज़ोरी को ताकत में। हमज़ा ने बदला हुआ आलिया देखी तो घबरा गया। ये खामोश औरत अब सवाल करने लगी थी। एक रात आलिया ने साफ कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ मगर डर के साथ नहीं। हमज़ा पहली बार शर्मिंदा हुआ। उसे एहसास हुआ कि मर्द की एक इना औरत की पूरी ज़िंदगी हिला देती है। ये फैसला तलाक का नहीं था, ये फैसला बराबरी का था। आलिया और हमज़ा ने घर अलग कर लिया। मुश्तरका ख़ानदान से अलीहदगी मगर रिश्ते से नहीं, जहर से। लोगों ने बातें बनाई मगर आलिया ने सुकून पाया। इख्तिताम। खामोशी की आवाज़। कुछ साल बाद आलिया एक स्कूल में पढ़ा रही थी। बच्चियां उसके गर्द बैठी थीं। वो मुस्कुराई और बोली, खामोश रहना सब्र हो सकता है मगर बोलना हक है। वो जान गई थी, खामोश शहर में भी आवाज़ पैदा की जा सकती है। अल्लाह हम सबको हक के साथ जीने और बोलने की हिम्मत दे। अल्लाह हाफिज़। नून। ये घर हमेशा से खामोश था मगर आज उस खामोशी में बोझ था। आलिया सहन में बैठी चाय को घूर रही थी, जैसे चाय की सतह पर तीरती भाप में अपना मुस्तकबल तलाश कर रही हो। अंदर कमरे से अबू की आवाज़ आ रही थी, सख्त, फैसला कुन, बेलचक। हमने सोच लिया है, शफाक अच्छा रिश्ता है, अब कबूल है। एक लम्हे को वक्त रख गया। आलिया ने नजरें उठाईं। हमज़ा ने आहिस्ता सर हिलाया और वो लफ्ज़ अदा हो गया जो उसकी जिंदगी की समत बदल गया। कबूल है। शादी के बाद का घर बड़ा था मगर दिल तंग। सास की मोहब्बत में हुक्म शामिल था और हर मुस्कुराहट के पीछे तवक्कुआत। औरत का असल घर यही होता है, ये जमला रोज उसे याद दिलाया जाता। हमज़ा अच्छा था मगर खामोश, और बाज़ औक़ात खामोशी बेरखी से ज्यादा तकलीफ देती है। एक दिन मामूली बात पर झगड़ा हो गया। पैसे, जिम्मेदारियां, खानदान, सब कुछ उकठा हो गया। गुस्से में हमज़ा के मुंह से वो लफ्ज़ निकल गया जिसने आलिया के कदमों तले जमीन खींच ली। तलाक। वो लफ्ज़ धमकी था मगर असर हकीकत जैसा। आलिया ने इस दिन जान लिया कि औरत का आतिमाद कितनी आसानी से तोड़ा जा सकता है। आलिया चंद दिन के लिए माँ के घर चली गई। वो घर जहाँ वो कभी बैठी थी अब मेहमान थी। माँ ने प्यार किया मगर बेबसी आंखों में थी। बेटियां वापस नहीं आते, नभाने जाती हैं। ये जमला आलिया के दिल में तीर की तरह लगा। आलिया ने खुद को आईने में देखा। वो लड़की कहाँ गई जो ख्वाब देखती थी। उसने फैसला किया, अगर जिंदगी समझौता है तो शर्तें वो खुद तय करेगी। उसने पढ़ाई दोबारा शुरू की, अपनी खामोशी को इल्म में बदला और कमज़ोरी को ताकत में। हमज़ा ने बदला हुआ आलिया देखी तो घबरा गया। ये खामोश औरत अब सवाल करने लगी थी। एक रात आलिया ने साफ कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ मगर डर के साथ नहीं। हमज़ा पहली बार शर्मिंदा हुआ। उसे एहसास हुआ कि मर्द की एक इना औरत की पूरी ज़िंदगी हिला देती है। ये फैसला तलाक का नहीं था, ये फैसला बराबरी का था। आलिया और हमज़ा ने घर अलग कर लिया। मुश्तरका ख़ानदान से अलीहदगी मगर रिश्ते से नहीं, जहर से। लोगों ने बातें बनाई मगर आलिया ने सुकून पाया। इख्तिताम। खामोशी की आवाज़। कुछ साल बाद आलिया एक स्कूल में पढ़ा रही थी। बच्चियां उसके गर्द बैठी थीं। वो मुस्कुराई और बोली, खामोश रहना सब्र हो सकता है मगर बोलना हक है। वो जान गई थी, खामोश शहर में भी आवाज़ पैदा की जा सकती है। अल्लाह हम सबको हक के साथ जीने और बोलने की हिम्मत दे। अल्लाह हाफिज़। नून। खानदान। सब कुछ उकठा हो गया। गुस्से में हमज़ा के मुंह से वो लफ्ज़ निकल गया जिसने आलिया के कदमों तले जमीन खींच ली। तलाक। वो लफ्ज़ धमकी था मगर असर हकीकत जैसा। आलिया ने इस दिन जान लिया कि औरत का आतिमाद कितनी आसानी से तोड़ा जा सकता है। आलिया चंद दिन के लिए माँ के घर चली गई। वो घर जहाँ वो कभी बैठी थी अब मेहमान थी। माँ ने प्यार किया मगर बेबसी आंखों में थी। बेटियां वापस नहीं आते, नभाने जाती हैं। ये जमला